السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کامیابیوں کی پرواز کو یقینی بناتے ہوئے میں ہوں آج آپ کے ساتھ صحافی شہباز۔ اللہ کے فضل سے آج ایک نئی ویڈیو لے کر آیا۔ تو بیٹا جی، اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کروں، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، بیل آئیکن بھی کیجیے اور پیارا سا کمنٹ بھی کریں، اور بیٹا جی دوسروں سے شیئر ضرور کریں اور فالو بھی کیجیے۔ تو بیٹا جی آج جو کلاس ہے وہ ہے فرسٹ ایئر، اور بیٹا جی جو سبجیکٹ ہے وہ اردو، اور ٹاپک ہے تلخیص۔ ٹاپک ہے تلخیص۔ تو آئیے بیٹا جی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، توجہ سے غور سے دیکھیے گا اور سنیے گا۔ تو بیٹا جی فرسٹ ایئر میرے پاس کلاس ہے اور سبجیکٹ ہے اردو۔ تو بیٹا جی یاد رکھیے گا، ون سائڈ پہ ہم نے ایک طرف مارجن لائن لگا دی۔ تو بیٹا جی ہمارے پاس جو آج ٹاپک ہے وہ ہے تلخیص۔ بیٹا یاد رکھیے گا، جو کویسچن پیپر ہوتے ہیں، کویسچن پیپر کے مطابق ہمارے پاس یہ سوال نمبر ہوتا ہے 9، آخری سوال ہوتا ہے بیٹا جی، یہ آپ کا آخری سوال ہے، سوال نمبر 9۔ بیٹا یاد رکھیے گا تلخیص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تلخیص کا مطلب ہوتا ہے کانٹ چھانٹ کرنا، کانٹ چھانٹ کرنا۔ اور دوسری چیز بیٹا یاد رکھیں، تلخیص سے متعلقہ 3 چیزیں بیٹا جی، ایک ہے تشریح، اور ایک لفظ ہے سلیس، اور ایک ہے تلخیص۔ تشریح کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے وضاحت کے ساتھ لکھنا ہے، وضاحت کرنی ہے جی۔ تشریح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم نے وہاں ڈیٹیل ریکوائر ہے، ڈیپلی ہم نے بات کرنی ہے، ایکسپلینیشن دینی ہے۔ تشریح کا مطلب بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا ہے۔ اور سلیس کا مطلب ہوتا ہے بیٹا جی، جیسے ایک شعر دیا گیا اور اس کے اندر جو پوچھا گیا ہے کہ جی اس شعر میں کیا بات ہوئی، مطلب یہ سلیس کا مطلب ہوتا ہے کہ جتنی بات ہوئی اتنی کا ہی ذکر کر دینا ہے، اتنی کا ہی ذکر کرنا ہے، بات کو بڑھانا نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں تلخیص کا مطلب ہوتا ہے 1/3 کم کر دینا۔ تلخیص کا مطلب ہے کم کر کے بیان کرنا۔ جیسے ایک پیراگراف دیا جا رہا ہے، مثال کے طور پہ 4-5 لائنوں پر مشتمل ایک پیراگراف ہے، تو بیٹا جی ہم نے اس کو کیا کرنا ہے؟ کم کر کے لکھنا ہے۔ تلخیص کا مطلب کیا ہوا؟ کم کر کے لکھنا ہوتا ہے جی۔ اب یاد رکھیں، ہم نے سب سے پہلے ہیڈنگ دے لینی ہے اپنے پاس رف عمل، اس کو انڈر لائن کریں گے، اور بیٹا جی یہاں ہم نے ہیڈنگ دینی ہے کل الفاظ۔ اب مثال کے طور پہ ہمارے پاس ایک پیراگراف ہے جس کی ہمیں تلخیص کرنی ہے، اس کے جو ہم نے کل الفاظ کاؤنٹ کیے گنے ہیں وہ ہیں 103۔ وہ کتنے ہیں؟ 103۔ کل الفاظ کے نیچے ہم لکھیں گے تلخیص شدہ الفاظ۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ تلخیص شدہ الفاظ ابھی نہیں لکھنے، ابھی ہمیں کلیئر ہی نہیں ہے، کنفرم ہی نہیں ہے کہ کتنے الفاظ ہیں، ابھی نہیں بیٹا جی، بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اس کو بعد میں لکھتے ہیں۔ تو بیٹا جی رف عمل کے بعد ہمارے پاس یہاں اگلی چیز ہوتی ہے مناسب یا مجوزہ عنوان۔ مناسب یا مجوزہ عنوان، اس کو انڈر لائن کیا، یا رابطہ کی علامت۔ بیٹا یاد رکھیے بورڈ پیٹرن کے مطابق یہ عنوان 1 بھی ہو سکتا ہے، 2 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، 1 سے 3 تک بیٹا جی عنوان ہوتے ہیں۔ ایسے 1 بائی 1 سٹیپ بائی سٹیپ اوپر نیچے کر کے آپ نے یہ لکھنے ہیں بیٹا جی۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو آخری ہیڈنگ ہوتی ہے وہ ہے تلخیص شدہ عبارت، اس کو ہم انڈر لائن کریں گے، اور آگے یہاں ہمارے پاس تفصیلیہ کی علامت ہے، اور یہیں سے اس کے آگے سے شروع کریں گے، اور یہ ہیڈنگ کے نیچے سے بھی لکھنا شروع کریں گے ہم۔ اب بیٹا جی یہ میں نے آپ کے سامنے ایک سکیچ بنایا ہے۔ اب یاد رکھیے گا، ہم نے
बोर्ड में जब ये चीज लिखनी है, बोर्ड पैटर्न की में स्टार्ट करना है, सबसे पहले हमारे पास है सवाल नंबर 9। ये बेटा जी आपका बोर्ड पैटर्न जो असल है वो मैंने समझाने के लिए रफ अमल लिखा। अब तरतीब तवज्जो से बेटा जी, सवाल नंबर 9 लिखने के बाद जब हमने लिख दिया यहाँ तलखीस, हमने यहाँ बता दिया तलखीस। अब बेटा जी हमने यहाँ लिखने कुल अल्फाज, अब यहाँ नहीं आएगा रफ अमल, हमने यहाँ लिखने कुल अल्फाज। और बेटा जी ये राब्ता की अलामत। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास जो पैराग्राफ हमें दिया गया, हमने उसके अल्फाज काउंट कर लेने। अब बेटा याद रखिएगा, अल्फाज काउंट करते हुए हमने ये देखना है कि कुछ अल्फाज मुफरद भी होते हैं और कुछ अल्फाज मुरक्कब भी होते हैं, यानी दो लफ्ज मिलकर एक लफ्ज बनेगा। तो काउंट करते हुए ये मेजर मिस्टेक है, ये नहीं होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे जैसे हम कहते हैं शानो शौकत, लफ्ज है शानो शौकत। अब याद रखें ये दो लफ्ज नहीं है, ये एक लफ्ज है, ये एक लफ्ज है, और इसको हम कहते हैं मुरक्कब। दो लफ्जों से मिलकर जो लफ्ज बना शानो शौकत। तो बेटा ये जो पैराग्राफ दिया जा रहा है, हमने उसके अल्फाज को काउंट कर लेना, वो कितने बनते हैं जी। मिसाल के तौर पे 103 है, तो इसके नीचे हम लिख देंगे, हम यहां लिखेंगे तलखीस शुदा अल्फाज। अब बेटा ये तलखीस शुदा अल्फाज कितने हैं वो यहां लिखना है, लेकिन अभी नहीं, वो बाद में लिखते हैं। हम पहले आगे बात को बढ़ाते हैं। बेटा जी यहां हम लिखेंगे मुनासिब या मुजव्विसा उन्वान, और इसको बेटा ये हम अंडरलाइन करेंगे, राब्ता की अलामत। और याद रखिए बोर्ड पैटर्न के मुताबिक एक उन्वान हो जाए, दो हो जाए, तीन तक होते हैं बेटा जी। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। उसके बाद बेटा जी हमने अगली हेडिंग है हमारे पास, वो है तलखीस शुदा इबारत। अब यार अंडरलाइन करने के बाद तफसीलिया की अलामत, और बेटा जी यहां से उसी के आगे स्टार्ट करेंगे, लेकिन बाद में उसके नीचे तक जाएंगे, उसके नीचे तक हम जाएंगे, लास्ट में एंडिंग लाइन। अब बेटा जी तवज्जो से बात को सुनिएगा, कुछ बातें ऐसी जो आपके सामने गोश गुजार करना जरूरी है, आपको समझाना जरूरी है। बेटा जी हमने क्या करना है, सबसे पहले ये काम करना है कि जो हमें पैराग्राफ दिया गया है उसमें हमने ये देखना है कि जाहिर है उसमें 4-5 बातों का जिक्र होगा ना। अब हमने ये देखना है पहली बात जो है वो लंबी चौड़ी है, कोई एक लाइन या 1.5 लाइन पे पूरी हो रही है, हमने उस बात में से जो इजाफी अल्फाज है वो कम कर देंगे। और जो हमने ये राफमल जैसे मैंने आपको बताया अलग से आपने क्या करना है जी, वो पूरी बात में से इजाफी अल्फाज कम करके मुख्तसर छोटा सा जो एक टू दी पॉइंट जुमला बनता है बेटा जी, हमने उसको अलग लिख लेना राफमल के अंदर। और फिर हमने देखना है दूसरी उसके अंदर पैराग्राफ में जो दूसरी लाइन है, दूसरी जो बात उसने जिक्र की है, हम उसको गौर से पढ़ेंगे, 2-3 बार उसको गौर से पढ़ने के बाद उसमें जो इजाफी अल्फाज है हम फिर उनकी भी कान छान करते हुए एक टू दी पॉइंट जो जुमला होगा बेटा जी, उसके जो राफा अमल है उसके अंदर अलग से हम लिख लेंगे। अब आप ये समझे कि अगर बिलफर्ज उसमें 4 बातें जिक्र है, बेटा जो आपको पैराग्राफ दिया जा रहा है जिसकी आपने तलखीस करनी है, उसमें कहने 4 बातें, तो हमने क्या करना है उन 4 बातों को उनमें से टू दी पॉइंट अलग लिखने के बाद बेटा जी वो जो बातें हैं उन बातों को फिर हमने क्या करना है, जो आपका ये पैटर्न है बेटा वो नहीं, क्योंकि उसमें राफा अमल का जिक्र है वो वैसे है, ये असल आपका पैटर्न है। तो बेटा जी यहाँ तलखीस शुदा इबारत की हेडिंग देने के बाद ये जो आपने अलग से जुमले बनाए टू दी पॉइंट, इनको तरतीब से आपस में जोड़ के यहाँ लिख देने। और याद रखिएगा इन जुमलों को आपस में जोड़ते हुए या लिखते हुए इनके दरमियान जो रब्त है वो नहीं टूटना चाहिए, रब्त जरूर होना चाहिए, वो ना टूटने पाए। तो बेटा जी जब हम यहाँ एक पूरा एक पैराग्राफ की सूरत में ये चारों जुमले लिख लेंगे, अब ये हमारी तलखीस शुदा इबारत है जिसके टोटल अल्फाज से 103, कुल अल्फाज से 103, हमने उसको कम करके जो लिखा बेटा वो यहाँ लिख लिया। अब हमने इसको काउंट करना है, इस इबारत के अंदर, इस पैराग्राफ के अंदर जो तलखीस शुदा पैराग्राफ है
इन इसके उन अल्फाज को काउंट करके अब ये जो हमने हेडिंग दी है तलखीस शुदा अल्फाज, अब हम यहाँ लिखेंगे। अब 1/3 कितना था, मिसाल के तौर पे अगर 103 है तो बेटा जी आप यूं समझिए कि मेरे पास 35 अल्फाज है। बेटा एक बात और याद रखिएगा, अगर जो पैराग्राफ दिया गया जिसकी हमने क्या करनी है, तलखीस करनी है, बेटा जी अगर तो उसके 50 अल्फाज है तो याद रखिएगा अगर 1/3 करते हुए 50 अल्फाज बनते हैं तो बोर्ड पैटर्न के मुताबिक याद रखें 3 अल्फाज कम या ज्यादा किए जा सकते हैं। 50 अल्फाज यानी कि ज्यादा हो जाए तो 53 और कम हो जाए तो 47, एक चीज। नंबर 2, अगर है 75, तो बेटा जी यहाँ हमारे पास 5 अल्फाज की कमी पेशी है। 5 अल्फाज से कम या 5 अल्फाज कम या ज्यादा किए जा सकते हैं। 75 है, 70 भी हो सकते हैं, 80 भी हो सकते हैं, याद रखिएगा। बेटा जी इसके मुताबिक हमने क्या करना है, अब देखें ना जरूरी नहीं कि 35 अल्फाज बनते थे इसका तीसरा हिस्सा तो 35 ही लिखने हैं। अगर तो 50 तक उसके जो कम अल्फाज बने हैं और 35 बने हैं तो बेटा जी वो 38 भी हो सकते हैं और वो 32 भी हो सकते हैं, 32 भी हो सकते हैं और 38 भी हो सकते हैं। बेटा बात समझ आ रही है। और उसके बाद हमने क्या करना है, एक चीज का ख्याल रखिएगा कि जब हमने तलखीस शुदा इबारत के अंदर ये चीजें लिखनी है, एक तो रब्त होना जरूरी है और दूसरा मुनासिब या मुजव्विसा उन्वान जब हमने लिखना है बेटा जी उसकी पहली लाइन के अंदर जो पैराग्राफ दिया जाएगा या उसकी आखिरी लाइन के अंदर हमें मिल जाएगा। और बेटा जी ये आपके कुल इसके 10 नंबर हैं, ये 10 नंबर पर मुश्तमिल ये आपका सवाल था। तो बेटा जी इसमें ज्यादा एफिशिएंसी की बिल्कुल जरूरत नहीं है, टू दी पॉइंट रहते हुए आपने क्या करना है, इसको हल करना है, तो उम्मीद है बेटा जी कि आज की ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हाँ ये बता दूं ये असल है, ये पैटर्न असल है, वो वैसे रफ फॉर्मल है वो नहीं है। उम्मीद है कि बात समझ आ गई होगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हाँ जाते जाते याद दहानी करवाता जरूर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दूसरों से शेयर भी जरूर करें ताकि दूसरों को भी फायदा हो, और एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।